Television gives everyone an image, but radio gives birth to a million images in a million brains. Well said by Peggy Noonan. I, Ishika Vadwa, welcome you all to Jani Pehchani Awazein, an ode to our favorite voices presented by DME Radio Intersect. Radio has always been a medium of the masses. Its intimate nature is one of the reasons that makes it so popular. While television, films, or social media have their own appeals, radio has a charm that is unmatchable. While and the voices of RJs that we have grown to love over the years have become an integral part of our lives. From information to entertainment, from friendship to romance, from books to read and movies to watch, our RJs make sure we enjoy every slice of life with their wonderful shows. The team of Radio Intersect decided to dedicate a special program to popular RJs of India and have made a humble effort to recreate the classic shows of some of our favorite RJs. And we are proud to be able to present our little renditions in front of our special guests for today, RJ Ginny Mahajan and RJ Divya Vasudev. Welcome to DME, Ginny ma'am and Divya ma'am. Now, I would like to request Professor Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, who himself holds over 2 decades of experience in the field of radio, to address the gathering. Thank you, Ishika. Talking about radio, definitely it has been very close to my heart. Before coming to media education full time, I was a journalist, and before that, I was a radio broadcaster. I started my radio journey way back when I was studying in Allahabad University and started doing program, which is a program even today in All India Radio, Yugvani. So that used to be a program every youngster used to start with in early days. And earlier radio means only All India Radio. So, and the most special thing about All India Radio was that it was welcoming every young person. So for everybody, there was a space. So this is actually the essence of radio. रेडियो की खास बात ये है कि उसमें सभी का स्वागत है. ऑल इंडिया रेडियो में भी वो बात थी, और आज भी जिस तरह के चैनल्स हैं जो प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं, रेडियो हमेशा हर एक के लिए हमेशा उपलब्ध रहा है. एंड द नेचर ऑफ मीडियम इज सच wherein only audio is working. I mean, you are only speaking and then you are being listened to. So obviously the kind of complexities which are there, whether we talk about print media, in print media, obviously the nature of the medium is such that this two-way communication is hardly possible. In video also, in television also, if there is any communication possible between the broadcaster, between the person who is sitting in the studio and the person on the street, is that it will be, even if it happens, it will be always two-way audio and video, one-way audio and video, and one way it will be only the audio. So obviously your video is hardly seen unless until you are connected with OB-WAN and all. But radio is one medium where both the sides, from the communicator side and from the receiver side, both are at the same level. So the communication becomes very effective, because when we talk about communication, effective communication is when both the communicator and the communicatee, they are at the same level. The field of experience is the same. So radio की सबसे जो खास बात है वो यही है कि जो आपसे communicate कर रहा है, RJs जिस तरह से जो popular हुए या private FM radio popular हुए, उसके पीछे सबसे बड़ा reason यही है कि RJ जिस तरह से बात कर रहे हैं और हम जिस तरह से उसको receive कर रहे हैं और हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, हम भी उसी तरह से जवाब दे रहे हैं. तो जो ये कम्युनिकेशन है, जो ये इंटरेक्टिविटी है, ये यूनिक है रेडियो के केस में. और इसीलिए रेडियो सबसे हैंडी मीडियम है, सबसे आसान मीडियम है, सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला, यूज होने वाला मीडियम है, और सबसे इंटीमेट मीडियम है. तो इस वजह से रेडियो इतना पॉपुलर है और हम सबको ही पसंद है. और मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो रेडियो आई गॉट एसोसिएटेड इन 1980s. अभी भी स्टिल आई डू ए प्रोग्राम ऑन AIR FM Gold. I do anchor a program. This is a business program. This is a serious program, not a live program. So, but then it's a business. It is on business and economy.
एंड बट देन इट्स एन इंटरैक्टिव प्रोग्राम जहां पर दो एंकर्स हैं, एक हिंदी में और अंग्रेजी में, एंड देन हमारे पास एक स्टूडियो में एक्सपर्ट है, एक ऑनलाइन एक्सपर्ट है, एंड देन 3 दिन हम Q&A करते हैं. तो वी इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. And I do this Hindi part, Hindi anchoring करता हूँ इस प्रोग्राम में मैं. So I have been doing this particular program for last 20 years. उससे पहले रेडियो में I have been doing all kind of program, right from talks to as a drama artist, as a news reader, everything I have been doing. So that is how this radio is my first love. और इसीलिए जब भी रेडियो की बात होती है, I always encourage any such activity in DME जहाँ पर रेडियो का है. And then Dr. Susmita Bala, जो head है DME Media School की, she has also been having a very long association with radio, working with the women's program of All India Radio for very, very long. तो हम, और वैसे भी ये हमारी बात है, बट देन जो यंग लोगों की बात है, जिस तरह से रेडियो का एक्सपेंशन हुआ है, जब से प्राइवेट सेक्टर में रेडियो आया पिछले 20 साल में, जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है, दिल्ली इटसेल्फ में 14 रेडियो स्टेशन है, FM रेडियो स्टेशंस की अगर हम बात करें, तो इतने सारे जाएं. तो जो अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, चूंकि यहाँ ऑडियंस में देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से देखें, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें, तो रेडियो सबसे ज्यादा तेजी से एक्सपेंड होने वाला मीडियम है. अभी Tier 1, Tier 2 टाउन्स में FM आया है, Tier 3 में अब जो थर्ड फेज में शुरू हुआ है कहीं कहीं, और जब ये एक्सपेंशन होगा इन एवरी सिटी ऑफ द कंट्री, तो देन यू कैन इमेजिन देयर कुड बी, और जो पहले से सरकार का प्रेडिक्शन भी था, somehow it has not happened, in very near future there will be at least 1,000 radio stations in the country. अभी भी हम प्राइवेट FM की बात करें, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की बात करें, अभी भी 300-400 तक नंबर पहुंच जाता है. एग्जैक्ट नंबर I don't remember, but it will be somewhere reaching around close to 400 or something. तो जहां इतना बड़ा एक मीडिया का सेक्टर है, जो इंटरेस्टिंग भी है, जहां पे ओपनिंग्स भी हैं, और इसीलिए स्टूडेंट्स को भी ज्यादातर जो इंटरेस्ट लेते हैं, नथिंग लाइक दैट, बट बाकी लोगों के लिए भी ये एक ऐसा मीडियम है जो इन्होंने उनको इस एरिया में कंसंट्रेट करना चाहिए. और रेडियो में सीरियस भी है, रेडियो फन भी है, रेडियो गिव यू एक्साइटमेंट, रेडियो गिव्स यू एंजॉयमेंट, सारा कुछ रेडियो के अंदर है. तो एक ऐसे मीडियम पर आधारित आज हमने इस प्रोग्राम की कल्पना की है. इट वाज एन आइडिया ऑफ टीना बोरा, हु इज लुकिंग आफ्टर दिस रेडियो सोसाइटी इंटरसेक्ट. सो आई बिलीव some good programming we will be watching today, and we have Ginny with us, who is a known voice. मॉर्निंग में ज्यादातर लोग सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं जब ऑफिस जाता हूं, तो इस तरह की आवाजें हैं. और साइमा हैज आल्सो गिवन अ मैसेज, एंड होपफुली दिव्या विल आल्सो बी जॉइनिंग. सो हमें सारे लोगों को, इतने अच्छे आरजेस को भी आज सुनने का मौका मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम प्रोड्यूस किए, रिक्रिएट किए हैं, वो भी सुनने का मौका मिलेगा. सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम रियली गुड एंजॉयमेंट दिस इवनिंग. थैंक यू ऑल. Thank you, sir, for your kind words. Before moving ahead, let us take a look at what the members of DME have to say about their favorite RJs. My favorite RJ is RJ Ronak, and he has got a very versatile voice. He can switch from one personality to another, and his shows are always entertaining. It's like when you're listening to RJ Ronak, you just can never get bored with it. Hello, my name is Meghna Bakshi, and my favorite RJ name is RJ Kini, and her show name is Sunana Delhi. She tells about all the things which are happening in and out of the Delhi. Purani jeans, and now Meethi Mirchi. Do you know the voice behind these shows? Yes, RJ Saima, the beautiful and the sweetest voice I ever heard on radio. Her fab collection of songs, the way she presents poems and shairis, all are amazing. My favorite RJ is RJ Gimme, and I love her show Gimme the Library because it's a show about books, and I love reading books. And her show is so interesting because she describes the books in a way that it compels you to go and actually read the book. So that's one of my favorite shows. And I also love RJ Divya's Maa Behan Ka show, and I love her for her amazing personality. My favorite RJ is RJ Saima, for her intellect, for her wit, and the way she
picks up topics and talks about art, culture, and the diverse things that are there. The empathetic tone of her voice can bind everybody together. So my favorite RJ is... Hi everyone, my name is Ananya. My favorite RJ is RJ Praveen and I love his show Ek Kahani Aisi Bhi, which is a horror show. My favorite RJ is RJ Karthik. I love his show सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे. Hey everyone, my name is Aditi Katyal and my favorite RJ is RJ Ronak. I love this show Red FM Ka Baua. My favorite RJ is RJ Malishka. I think she's really funny. Moving ahead with the event. First up, we have an RJ whose amazing personality adds more beauty to her voice. Bold and fearless, RJ Divya has not only been entertaining, but also raising important social issues and dialogues through the medium of radio. Let's take a look at her journey. Let us now listen to a recreation of RJ Divya's newest podcast, Ajeeb Dastaan by Aditi Katyal, student of third year. This is PME Radio and you are listening to Radio Intersect. 22 जून 2021 डियर डायरी. बीती रात मैं सो नहीं पाई, बस करवट बदलती रही. मन काफी भारी था, एक बेचैनी सी थी. कुछ पुराने दिनों को याद करके मैं थोड़ी परेशान सी थी. इसी कश्मकश में कब सुबह ने दस्तक दे दी मुझे पता नहीं चला. आज मौसम काफी सुहाना था. ठंडी हवा मेरे मन को एक सुकून सा दे रही थी. चिड़ियों का चहचहाना मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिला रहा था. मैं और मेरी दोस्त, वो भी क्या दिन थे जब हम भी इन चिड़ियों की तरह चहकते थे. लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया. मैं बस अपनी यादों की गहराइयों में ही थी कि तभी मैं देखकर हैरान हो गई. मेरी दोस्त रितु ने आज 3 महीने बाद मुझे फोन किया. हेलो. हाय ब्रो, कैसी है तू? सब बढ़िया. इतने दिनों बाद आज कैसे? यार तुझे पता है ना, कोरोना टाइम्स और ये सब काम वगैरह में मुझे बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाता. हाँ यार, आई नो, सेम प्रॉब्लम. एक्चुअली मैं आज दिल्ली आई हूँ, तो सोचा तुझसे मिल लूँ. लेट्स मीट इन अ कैफे. हाँ श्योर यार, चल बाय. मन में अलग अलग विचार आने लगे कि पिछले 1.5 साल से कॉलेज बंद होने के बाद हम मिले नहीं. फोन पर बात तो होती थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो गई. मैं उसे याद बहुत करती थी. मेरा उससे मिलने का मन भी बहुत होता था. पर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए. आज वो दिल्ली वापस आई है और मैं उससे मिलने के लिए बेकरार थी. कैफे में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वो मेरा इंतजार कर रही थी. हाय रितु. हाय, कैसी है? यार मैं तो बढ़िया यार, तू बता तू कैसी है? यार कितने दिनों बाद मिल रहे हैं. पता है मैंने तुझे कितना मिस किया. यार मत पूछ, मैंने तुझे कितना मिस किया. अच्छा ये बता, क्या खाएगी? वही हिली टैटो. हम चिली पोटैटो को हिली हिटैटो कहते थे ना. याद है मुझे यार. मैं और मेरी तन्हाइयाँ बस पुराने दिनों को ही याद करती रहीं. उसका चेहरा देखकर मुझे खुशी तो हुई ही, पर मन में बस एक सवाल आया कि क्या वो भी मुझे याद करती होगी. यार वो भी क्या दिन थे जब हम साथ होते थे. साथ कॉलेज जाना, लंच करना, वो बाइक पे सवार होकर पूरी टोली चलती थी. लेकिन आज वीडियो कॉल पर ही शक्लें दिखाई देती हैं. हाँ यार, काफ़ी कुछ बदल गया. अरे तुझे याद है वो ऋषभ का डांस जिस पर हम सब हंसते थे?
हाँ यार, मुझे याद है तेरे बर्थडे पर मैंने तेरा केक फेशियल किया था। क्या अजीब लग रही थी ना तू। मैं मन ही मन बेहद खुश थी। आज ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अपना वापस मिल गया हो। ओ हाँ, हमारे कॉलेज की वो हंसों का जोड़ा, उनका क्या हुआ? अरे हाँ यार, वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। और हम लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे दिल में जो था, आज मैंने वो बेझिझक बोल दिया। आई नो यार, मुझे वो पहले की तरह समय चाहिए। वो साथ में रहना, वो हंसना, हमारा एक दूसरे के पास रोते हुए आना, यार सब बदल गया। अब हम पहले की तरह नहीं रहते। वो दोस्ती, वो यारी। यार, ज़रूरी नहीं कि डेली साथ रहना, साथ घूमना ही सब है। शायद हम रोज़ ना मिले, ना ही रोज़ बात करें, लेकिन जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी ना, आई एम देयर फॉर यू। No matter how far you manage to go, distance will never be able to erase the beautiful memories. There is so much goodness that we share together. चल, अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। और तू हमारी दोस्ती को इतना कमज़ोर मत समझियो। ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैं तो सोचती थी कि दोस्ती की यादें धुंधली पड़ गई होंगी। ये मुलाकात फिर होगी कि नहीं, मैं ये नहीं जानती, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि दूरी सिर्फ इस बात का टेस्ट है कि दोस्ती कितनी दूर जा सकती है। Thank you, Aditi. That was so entertaining and astounding indeed. The next RJ that we are making a dedication to is a favorite amongst all radio enthusiasts. Yes, I am talking about RJ Nilesh Misra, whose amazing stories we can't get enough of. Let's take a look at his AV. Now, presenting before you a recreation of Nilesh Misra's iconic show, Yadon Ka Idiot Box, by Yashika Agrawal, student of third year. This is DME Radio, and you are listening to Radio Intersect. बात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है यशिका अग्रवाल। कहानियां सुनाती हूँ। यादों का इडियट बॉक्स विद यशिका अग्रवाल। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तस्वीरों पर उंगलियां शायद हम सब फहराते हैं। बीते हुए लम्हे को याद कर यूं ही मुस्कुराते हैं। उस ढलती शाम की केसरी सी लाली में मैं अपनी बालकनी में बैठी तस्वीरों में यादें टटोल रही थी। फ़ोन की स्क्रीन पर उंगलियां फहराई तो खुद की बेबसी पर ही हंस पड़ी। कोई इंसान तुमसे इतना पास होकर भी कितना दूर हो सकता है ना। यूँ तो प्रणय को मैं कॉलेज के दिनों से जानती थी, पर सालों बाद भी मैंने उसकी इस तस्वीर को दिल के किसी बक्से में बंद छोड़ दिया था। आज वो बक्सा खोला तो खुद से झंझोड़ गई थी मैं। वो हर संडे मेरे घर आता है और उसकी याद हर संडे से पहले। मैंने फिर लंबी सी सांस भरी और कॉलेज की तस्वीरों पर मेरी नजरें रुक सी गई। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे बालों से गुजरा और वो सारी यादें ताज़ा कर गया। कॉलेज के दिनों में बेगरज होने की खूब कीमत चुकाई थी मैंने। प्रणय तब भी अक्सर बोला करता था, जितनी जिंदगी है सारी की सारी निचोड़ कर इन 3 सालों में जी लेते हैं, फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ। मैं उसकी इन बातों पर उन्हें बचपना समझ मुस्कुरा दिया करती थी। आज वापस देखती हूँ तो शायद वो पल इसलिए बेहद खूबसूरत लगते हैं क्योंकि वो बीत चुके हैं। मैं इस यादों के सफर में हिचकोले खा ही रही थी कि मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने हाथ में लिया कॉफी मग टेबल के सिराने रखा तो देखा कि आज मेरा संडे का बुलावा संडे से पहले ही आ गया था। स्क्रीन पर प्रणय कॉलिंग देखकर मैंने फट से फ़ोन उठाया और बोली,
हेलो, तुम जल्दी फ्री हो गए आज? नाउ प्रणय सर्विसेज विल बी ऑन योर कॉल ड्यूटी ऑन वेडनेसडे एंड संडेज। तुमने कॉफी तो नहीं पीना अभी तक? वो जोश में बोला। उसके चेहरे पर खुशी की रेखा खिंचती भी महसूस कर सकती थी मैं। आई कैन हैव कॉफी, मैंने आधा भरा मग देखते हुए बोला। परफेक्ट, कुछ ग्रोसरीज पिकअप करने हैं? उसने बड़ी सहजता से पूछा। नहीं, जल्दी आओ, बस कॉफी की क्रेविंग है यार, मैंने जिद में बोला तो मेरा कॉफी मग की हंसी मेरे कानों में गूंज उठी। उसने हंसकर फोन काट दिया और सही 10 मिनट में मेरे घर की घंटी बजी। मैंने जमीन से लिपटे समेटे हुए पैर खोले और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खुलते ही प्रणय बोला, आ गया तुम्हारा कॉफी कुक। मैं फिर मुस्कुरा दी। शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे क्या बोलूं। उसे ऐसा क्या बताऊं कि वो यहीं रुक जाए, कहीं ना जाए। कितना अजीब है ना ये, कितना अजीब होता है अकेलापन। शायद किसी को ना समझा। लोग तो बहुत मिले थे मुझे आज से पहले, कॉलेज में काम करते समय, पर कभी किसी को अपने मन की बातें वैसे नहीं बता पाई जैसे प्रणय को बता देती थी। आराम से एक कॉफी के बाद सारी बातें, मन में छुपे राज, कभी कभी डर। कितना खूबसूरत सा रिश्ता था ना। हमने इस रिश्ते को कोई नाम देके बिगाड़ा नहीं था। बहुत खूबसूरत। वो अंदर आया, उसने कुछ बातें करी और फिर बोल पड़ा, सुनो, मुझे ना जाना पड़ेगा। मैंने बोला, अरे आज इतनी जल्दी? तो वो बोल पड़ा, हाँ पर घर नहीं, मतलब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, मुझे गोवा शिफ्ट होना है। मेरी सांसें एक पल के लिए वहीं थम गई। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं, और उसकी वो शक्ल देखते हुए एक अजीब सा डर बैठ गया मेरे मन में। मैंने बोला, पर प्रणय तुम्हारी जॉब सब इधर है, गोवा क्यों? उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, नई जॉब मिली है, इट बी वेरी गुड फॉर माई करियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ तो गई थी मैं, समझ नहीं था। खुद की खुशी के लिए उसे तो नहीं रोक सकती थी ना। वो चला गया। उस दिन जब दरवाज़ा बंद किया तो समझ गई थी मैं, अब वो अपार्टमेंट ऐसे ही शांत रहने वाला है। मैंने ये सारी बातें, सारी उलझने फिर एक बक्से में बंद कर अपने दिल के किसी कोने में फेंक दी। अगले दिन उठी तो आज कुछ नया लगा। मुझे पता था अब आई एम ऑन माई ओन। ऑफिस के लिए तैयार हुई, दिन बीतते गए। रोज सुबह उठती, ऑफिस के लिए तैयार होती और निकल पड़ती। कोई ऑफिस के बाद इंतज़ार नहीं करता था, किसी संडे कोई मूवी नहीं देखती थी। दिन बीत रहे थे कि एक दिन मेरे फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया, हे वानी लेट्स मीट अप ना। मेरी स्कूल फ्रेंड थी, काफ़ी समय हो गया था उससे मिले हुए। मिली तो मैं किसी से भी नहीं थी इन दिनों। किसी तरह हिम्मत जुटाकर चली गई। सही 6 बजे कैफ़े पे मिलना था और मैं 6:30 बजे पहुंच गई। खुद से लड़ती झंझोड़ती मैंने गेट खोला कैफ़े का तो देखा वो वहीं बैठी मुस्कुराते हुए। स्कूल के दिन याद आ गए। मैं गई तो बातों बातों में सारी बातें कर ली उससे। कैसे ट्यूशन के बाद घूम लेते थे, कभी होमवर्क नहीं करने पे एक दूसरे को बचा लिया करते थे, कैसे घूमने की परमिशन लेने के लिए एक दूसरे के घर पे झूठ बोला करते थे। सारी बातें एक एक करके याद आ गई। आज बहुत दिनों बाद मन हल्का लग रहा था। मैं बातों ही बातों में इतना खो गई कि भूल गई मेरे फ़ोन पे प्रणय का मैसेज पड़ा था। उसने उस मैसेज का रिप्लाई किया था जो मैंने उसे 2 दिन पहले भेजा था।
बताते हुए कि मैं कितनी डरी हुई हूँ, डर लग रहा है सब खत्म हो गया है, कोई है नहीं मेरे पास। उसका रिप्लाई आया था बस एक लाइन, लाइफ खत्म नहीं होती है मैडम, लोग आते हैं जाते हैं, मिलते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। That was indeed so euphonious. It's now time for another popular voice that reigns our heart, RJ Praveen. Let's first take a look at his profile. Now, things are going to take a slightly different turn. Hold on to your seats, take a deep breath, and let's listen to this spine-chilling version of Ek Kahani Aisi Bhi by Ananya Verma, student of second year. This is DME Radio, and you are listening to Radio Intersect. हाय, आप सुन रहे हैं एक कहानी ऐसी भी सच्ची घटना पर आधारित आरजे अनन्या के साथ डीएमई रेडियो पर। अनु हर रोज की तरह आज भी देर रात तक जागकर कुछ दोस्तों से इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर रही थी। बातें करते करते वक्त कब निकल गया कुछ पता ही नहीं लगा। उसकी बड़ी बहन पारो भी बिल्कुल उसके बगल में ही बैठकर कोई टीवी सीरीज देख रही थी। 3 बजे का वक्त था। अनु अपनी दोस्त को एक मैसेज टाइप कर रही थी कि वो टाइप करते करते रुक गई। एक पल को मानो ऐसा लगा जैसे कोई लगातार उसकी तरफ नजरें कड़ाए खड़ा है, मानो कोई सामने से बिना कुछ कहे चुपचाप उसी की ओर लगातार बहुत देर से देखे जा रहा हूँ। अनु सहम गई। उसने अपनी नजरें ऊपर को उठाई तो जो उसने देखा उसके बाद वो बस एक पल देखती रह गई, मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो। उसकी सांसें अटक गई हों। इतना डर गई कि उस डर में कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अपनी बहन का हाथ कस के पकड़ के खींचा और उसका ध्यान फोन से हटाकर अपनी ओर किया तो पारू खिंच में चीख पड़ी, आ क्या है? कुछ बोलेगी? ऐसे क्या देख रहे जैसे कोई भूत? बस पारू ने इतना ही कहा था कि सामने दिख रहे नज़ारे पर से उसकी नजरें नहीं हटी। वो जहाँ थी वहीं रुक गई। भरी सर्दी में दोनों के माथों पर ठंडे पसीने की बूंदें जम गई, मानो दोनों को कोई बहुत बड़ा शौक लगा हो। दरअसल दोनों ने खिड़की के पर्दे के आगे एक लंबे चौड़े आदमी की परछाई देखी थी। वो परछाई इतनी काली और इतनी खौफनाक थी कि दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल जाए। दोनों बस पुत की तरह लगातार उसकी ओर देखे जा रही थी। अनु जैसे तैसे अपने आप को होश में लाई और उसने पीछे लगे लाइट के स्विच की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो ऐसा लगा मानो कोई बहुत तेज़ी से उसको पकड़ने के लिए आगे आ रहा हो। बिना कुछ सोचे समझे अनु लाइट के स्विच पर अपना हाथ कस के देकर मारती है और लाइट्स ऑन हो जाती है। पलट कर देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। कुछ देर तक दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन दोनों इतना सहम जाती हैं कि दोनों की आंखों से नींदें अब उड़ चुकी होती हैं।
नींद तो आती नहीं, तो सोचा कि इंटरनेट पे जो भी हुआ उसके बारे में उसका जवाब ढूंढे। इंटरनेट पे सर्च करने के बाद उनके सवालों के आधार पर बहुत सारे मानसिक और शारीरिक रोग नज़र आ गए। स्लीप डिप्राइवनेस, lack of sleep, disturbance in sleep cycle, hallucinations due to tension, overthinking, ऐसे 1000 रोग उनके सामने आ गए। लेकिन ये वो जवाब नहीं थे जो वो ढूंढ रही थी। इंटरनेट पे कुछ देर और सर्च करने के बाद डेविल्स आर नाम की एक साइट फ्लैश हुई। उस पर फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स लॉरेन वॉरेन और एड वॉरेन के हिसाब से ये लिखा था कि 3 बजे से 3:45 के वक्त को डेविल्स आर कहा जाता है। उस वक्त के बीच जिंदा दुनिया और दूसरी तरफ यानी कि लिविंग वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का पर्दा कुछ वक्त के लिए गिर जाता है, जिसकी वजह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इसी वक्त के बीच में सबसे ज़्यादा होती हैं। ये वही जवाब था जो दोनों ढूंढ रही थी। सुबह होते ही अनु अपनी माँ की तरफ भागी। माँ किचन में काम कर रही थी। अनु ने कल रात हुआ सारा हादसा अपनी माँ को सुनाया। माँ ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा कि शायद कोई सपना होगा या दोनों बहुत ज़्यादा फिल्में देख रही हैं या कोई और बात है। लेकिन थोड़ी देर बाद पारो ने अपनी माँ को आराम से बैठाकर सब समझाया, तो उन्हें दोनों का डर उनके चेहरे पर नज़र आया। माँ ने जल्दी से घर के कामकाज ख़त्म करे और उन्हें एक पंडित के पास लेकर गए। वो बहुत ही जाना माना पंडित था जो इन्हीं कामों में बहुत माहिर था। अनु और पारो जैसे ही अंदर आती हैं, पंडित उन्हें देखकर बोलता है, तुम दोनों इतना डरी क्यों हुई हो? अनु को देखकर पंडित बोलता है, तुमसे किसी के जुड़े रहने का एहसास मुझे है। बदला, नफरत, गुस्सा, ये जो कोई भी है सकारात्मक नहीं है बेटी, चिंता वाली बात है। इधर आओ। पंडित इशारा करके अनु को बुलाता है और पारो भी उसी के साथ आगे चली जाती है। दोनों के हाथ में पंडित एक रुद्राक्ष बांधता है, उस पर कुछ मंत्र करता है और उनकी माँ को देखकर कहता है कि जल्द से जल्द घर में एक पूजा कराइए। जो इनके साथ हुआ है वो बहुत चिंता वाली बात है। उनकी माँ उसी दिन शाम को उस पंडित को बुला के घर में एक बहुत बड़ा हवन रखवाती है। उस हवन के बाद हवा हल्की सी हो जाती है, मानो कि उस पल ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां ख़त्म हो गई, मानो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से पीछा छूटा हो। उस बात को 6 महीने हो, लेकिन दोनों बहनों में से आज भी एक में भी ये हिम्मत नहीं है कि वो रुद्राक्ष खोल दें। एक तब का दिन था और एक आज का दिन है। दोनों आज भी उस रुद्राक्ष को हाथ से उतारने में बहुत हिचकिचाती हैं। आज भी वो रुद्राक्ष दोनों के हाथों में है। तो ये थी आज की एक कहानी, ऐसी भी सच्ची घटना पर आधारित, आरजे अनन्या के साथ। Wow, Ananya, I can still feel the goosebumps on my skin. Next up, we bring to you a show that is a huge hit, especially amongst DMEs. Ginny Ki Library is a show by RJ Ginny, which airs on Radio City. Before that, we would like to show you a brief introduction of RJ Ginny. Now, presenting before you, Adi Ki Library, a rendition of RJ Ginny's most popular show by Aditya Sajan, student of 3rd year. This is DME Radio, and you are listening to Radio Intersect. Good evening everyone and welcome to a brand new edition of आदि की लाइब्रेरी। इस शो के स्टार्ट पे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, छोटा सा। क्या आप बुक्स पढ़ते हो? अगर आप किताब पढ़ते हो तो हाउ डू यू चूज अ बुक? लाइक आपको कैसे पता होता है कि ये किताब उठानी है? ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपको रेकमेंड करे, या यू नो समथिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बुक और ऑथर एंड आप रैंडमली उसको उठाते हो। तो आज मैं आपको बताती हूँ मैंने ये किताब कैसे उठाया।
तो इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रही थी एंड मेरी नज़र पड़ती है एक रैंडम पोस्ट पे एंड उन्होंने इस बुक की फोटोग्राफ काफ़ी एस्थेटिक वे में पोस्ट की थी एंड अ स्मॉल कैप्शन लाइक इफ पीपल वर रेन आई वाज अ ड्रिज़ल एंड शी वाज अ हरिकेन. Miles Holter's whole life has been boring until he meets Alaska Young. Gorgeous, clever, and mysterious, she draws him into her reckless world, and nothing can ever be the same again for him. Book का नाम है Looking for Alaska by John Green. John Green is really famous for his book The Fault in Our Stars. मैंने उनके 2 और बुक्स Paper Towns and Turtles All the Way Down के बारे में भी सुना है. Looking for Alaska की ऑलरेडी एक वेब सीरीज निकली है. I haven't watched that yet, but let's see what this book holds. So, without any further ado, let's talk about it. Looking for Alaska is a young adult fiction novel. Teenagers would love this book. इसमें जो characters हैं, उनके बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा गया है. The characters are school friends who may make you experience the nostalgia of your school's corridors. कुछ incidents में those friends are fighting, कुछ में they are together. The main character is Miles, who is known as Pudge. So Miles' life has been portrayed a bit dull. The thing I really liked about him is that he remembers last words said by people. Like when he meets this new guy, Chip, who is also his new roommate, he tells him the last words of this famous playwright Henrik Ibsen. So Pudge का ये talent मुझे काफ़ी अच्छा लगा and unique लगा. The whole story is about these guys, Chip, Pudge, Alaska, Takumi and Lara. Alaska, she's fun, loving, enthusiastic, but उसका character काफ़ी mysterious होता है. Not to just her friends, but for us too. जो author है, उन्होंने इस बुक को एक प्रॉपर एंडिंग नहीं दी. इट्स मोर लाइक एन ओपन एंडिंग. ऑडियंस को डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू थिंक एंडिंग क्या हो सकती है. आई वॉज रियली शॉक्ड एंड ब्लैंक जब मैंने पढ़ा, बट ज़रूरी भी नहीं कि फिक्शन हो तो एक प्रॉपर एंड हैप्पी एंडिंग हो. आई वुड रिकमेंड दिस बुक टू दोज हु आर टीनेजर्स एंड हु लव मिस्ट्री. मिस्ट्री जिनको पसंद है वो एक बार ये बुक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. वर्थ इट मे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बुक पढ़ के मुझे मेरी स्कूल टाइम की याद आ गई. लेट मी नो आप लोगों को कैसा लगा ये बुक पढ़ के एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक. अब आप मुझसे मिलोगे अगले हफ्ते. एंजॉय योर वीकेंड एंड येस प्लीज राइट टू मी योर एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दिस बुक. थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी इन आदि की लाइब्रेरी. Wow, that was so mellifluent. Another favorite RJ, another favorite voice, RJ Saima, whose soothing voice calms our mind that nothing else can. Let us take a look at her amazing profile. Presenting before you एक पुरानी कहानी, a show based on the stories of Saadat Hasan Manto by Shubham Mandal, an alumnus of DME Media School. This is DME Radio and you are listening to Radio Intersect. ऊंचे टीले पर गडरिए का लड़का खड़ा दूर जंगल की तरफ मुंह किए चिल्ला रहा था. भागो भागो, शेर आया शेर. उसकी जवान बुलंद आवाज बहुत देर तक वातावरण में गूंजती रही. चिल्ला चिल्ला कर आखिरकार जब उसका हलक सूख ही गया था तो बस्ती में से 2-3 बूढ़े लाठियां ठेकते हुए आए और गडरिए के लड़के को कान पकड़कर ले गए. पंचायत बुलाई गई. बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गडरिए के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ. आरोप यह था कि उसने गलत खबर देकर बस्ती के अमन में खलल डाली.
तो गडरिये का लड़का बोला, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझते हो। शेर आया नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह आ भी नहीं सकता। तब उसे पता चला कि वन विभाग के अफसरों ने चिट्ठी भेजी थी जिसमें इसका जिक्र हुआ था कि वह शेर अब बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने ये कहा, लेकिन तुम्हें यह तो मालूम नहीं कि उसने थोड़े ही रोज हुए अपना कायाकल्प कराया था। बदले में उसे पता चला कि यह एक अफवाह है। जब गांव वालों ने वन विभाग से ये चीज़ पूछी तो वन विभाग ने ये बताया कि शेर ने कायाकल्प कराने के बजाय अपने दांत ही तोड़वा लिए। वह अपनी बच्ची कुची जिंदगी अहिंसा में व्यतीत करना चाहता था। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, क्या ये जवाब झूठा नहीं हो सकता? तब सबने एक जबान होकर उसको बोला, हमें वन विभाग के अफसर पर पूरा भरोसा है, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें सच बोलने की शपथ दी गई है। तब गडरिये के लड़के ने पूछा, क्या ये हर्फ झूठा नहीं हो सकता? तब उसे जवाब मिला, हरगिज नहीं। तुम साजिशी हो, फिफ्थ कॉलमिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, गद्दार हो, तरक्की पसंद हो, तुम सादत हसन मंटो हो। तब लड़का मुस्कुराया और बोला, खुदा का शुक्र है कि मैं वह शेर नहीं जो आने वाला है। मैं वन विभाग का सच बोलने वाला अफसर भी नहीं। मैं तो आखिर तभी पंचायत के एक बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम उसी गडरिये के लड़के की औलाद हो जिसकी कहानी वर्षों से स्कूलों में प्रारंभिक क्लासों में पढ़ाई जा रही है। तुम्हारा हश्र भी वही होगा। शेर तो जरूर आएगा, लेकिन तुम्हारी बोटी चबा डालेगा। गडरिये का लड़का मुस्कुराया, मैं तो उससे लड़ूंगा। मुझे तो हर घड़ी उसके आने का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शेर आया वाली कहानी जो तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शेर आया का मतलब है कि खबरदार रहो, होशियार रहो। बहुत मुमकिन है कि शेर की बजाय कोई गीदड़ इधर ही चला आए। इस हैवान को भी तो रोकना चाहिए ना। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम कितने डरपोक हो, गीदड़ से भी डरते हो? गडरिये के लड़के ने कहा, मैं शेर और गीदड़ दोनों से नहीं डरता, लेकिन उनकी हैवानियत से अलबत्ता जरूर भयभीत रहता हूँ, और उस हैवानियत का मुकाबला करने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखता हूँ। मेरे बुजुर्गों, स्कूलों से वह किताबें हटा दो जिसमें शेर आया वाली पुरानी कहानी छपी है। उसकी जगह ये नई कहानी पढ़ाओ। तभी एक बुढ़े ने खसखसाते हुए कहा, ये लौंडा हमें गुमराह करना चाहता है। ये हमें सीधे सीधे रास्ते से हटाना चाहता है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी सीधी लकीर नहीं है मेरे बुजुर्गों। तभी दूसरे बूढ़े ने आक्रोश में कांपते हुए कहा, ये नास्तिक है, ये अधर्मी है, उपद्रवियों का एजेंट है, इसे फौरन जेल में डाल दिया जाए। गडरिये के लड़के को जेल में डाल दिया गया। उसी रात बस्ती में शेर दाखिल हुआ। भगदड़ मच गई। कुछ बस्ती छोड़कर भाग गए, बाकी शेर ने शिकार कर लिए। आखिर में जब शेर अपने मूंछों के साथ लगा हुआ खून चूसता जेल के पास से गुजर रहा था, तो उसने मजबूत लोहे के सलीखों के पीछे गडरिये के लड़के को देखा। गडरिये का लड़का मुस्कुराया और बोला, दोस्त, यह मेरे बुजुर्गों की गलती है, वरना तुम मेरे लहू का जायका भी चख लेते। धन्यवाद। I am sure I am not the only one who got chills after listening to this. Now we have a very special video message from none other than our very favorite RJ, Saima Rahman.
Here is a big hi to DME Radio Intersect enthusiasts. आप जितना मुझे मिस कर रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैं आपको मिस कर रही हूँ बिकॉज इट्स सो लवली टू स्पीक टू पीपल जो कि एक यकीन रखते हैं, कन्विक्शन रखते हैं कि ये जो हमारी आवाज़ है ना, इससे बहुत प्यारी शख्सियत जो है हम दुनिया के सामने ला सकते हैं. एंड मुझे लगता है इससे बड़ा आर्ट कोई हो ही नहीं सकता. हम कहते हैं ना कि हम अपने अल्फाज, अपने वर्ड से जो है दूसरों को या तो हर्ट कर देते हैं या फिर उन्हें जीत लेते हैं. रेडियो जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी से ड्रिवन है. एंड आई हर्ड योर प्रेजेंटेशन ऑफ एक पुरानी कहानी. आई थिंक इट वाज फैब्युलस. मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई सिर्फ ऑडियो सोच रहा है कि कहानी कैसे पढ़नी है, कुछ उस अंदाज में कि अगर हमें कोई सुनाता तो हम एक सेकंड के लिए उठ नहीं पाते. And the kind of effort that you guys have put in, it's absolutely fantastic. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि मैं बहुत कई बार ऑब्ज़र्व करती हूँ, रेडियो पे आने के बाद ना इंसान अपनी आवाज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाता है. वो वैसे बोलने लगता है जैसे वो आम जिंदगी में बोलता नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक हल्की सी वो डिज़ायर होती है कि मेरी आवाज़ अच्छी साउंड करे. वो ड्रीमी बनाने के चक्कर में, वो बैरिटोन बनाने के चक्कर में होता क्या है कि हम अपनी आवाज़ से जुदा हो जाते हैं. आवाज़ कुछ और होती है, हम कुछ और होते हैं. और वो जो मिसमैच है ना, वो सुनने वाले को सुनाई देता है. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुझसे कभी किसी ने पूछा था कि आप अपनी आवाज़ ऐसी रखने के लिए क्या करती हैं. तो सबसे पहले तो बड़ी नॉर्मल सी आवाज़ है मेरी, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है. हर वो इंसान जिसका दिल अच्छा होता है ना, उसकी आवाज़ में कशिश होती है. तो आप अगर अपनी आवाज़ में कशिश लाना चाहते हैं, वो अट्रैक्टिव एक फ्लेवर लाना चाहते हैं, तो बस अपना दिल अच्छा करते जाएं, नॉलेज बढ़ाते जाएं, एक फ्री थिंकिंग माइंड हो, एक लिव एंड लेट लिव एटीट्यूड वाले इंसान हो, तो आई एम श्योर आप एक इतने अच्छे फ्रेंड, एक इतने अच्छे रेडियो फ्रेंड बन जाएंगे कि फिर आपसे किसी को अगर compete करना होगा ना, तो उसको भी अच्छा बनना पड़ेगा, है ना. So all the very best in whatever you do, and I know that you guys are gems, and just stay that way. बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारी, और अभी तो we've just begun. All the best. That was such a beautiful message. Now I would like to invite RJ Ginni Mahajan to address everyone. Hi guys. First, I want to ask you, are there only women in your institute? Because there are only women who've done everything. SIMAS was also done by an alumnus. So are there only currently women in this college? Yes? No? Yes. I think it was beautiful what you guys. In fact, Ginni, this is a century of women, in fact. It looks like it. Like there was no guy recreating anything. Only women. But very well done. Very, very nice. Very, very different. Before I start, I just hope that none of you have to ever recreate anything we've ever done. Because I think all of you are much more original than all of us. And we all found our spaces, so to speak. And I hope all of you find your spaces. So never recreate. I loved what Simon said. That, everybody tries to have this one voice. I don't think any of us have a particular voice. एक ज़माने में होती थी रेडियो पे एक तरीके की आवाज़. आजकल आप जो बातें करते हो और आप उन बातों को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हो, जैसे इशिका हर परफॉर्मेंस के बाद एक ऐसा अंग्रेजी का वर्ड यूज करती है, दिस वाज सो समथिंग, जिसका वर्ड मुझे गूगल करके मतलब पता करना होता था कि वो कैसे करते हैं. दैट इज हर फ्लेवर. Everybody will have their own thing. So please just be original. Do whatever you feel like doing. Talk a lot. You're all radio students. You're all a part of a radio fraternity. So a couple of things of radio that I want to tell you is, अपने यहाँ जितने भी shows present करें, वो एक single person shows हैं. मतलब कि मैं उसको सुना रही हूँ और उसके बाद आप सिर्फ सुन सकते हो. Okay? रेडियो का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है एज कंपेयर टू एनी अदर मीडियम, वेदर इट्स प्रिंट, वेदर इट्स टेलीविजन, वेदर इट्स इंटरनेट, इज दैट इट्स अ two-way medium. That is the only medium that provides it. So I think
when you guys selected these things, you selected stuff that we do on a weekly basis. But what radio on an everyday basis is to talk about things that are happening. So, for example, today there's a viral video of a girl crying at her wedding because the DJ did not play her song. Then I want to hear your experiences of things that are happening. If there are blasts happening in Kabul, I want to hear what do you guys think about it, that where is the UN at this point in time? If there is vaccination and we've done 1 crore doses yesterday, then are there people in your family who you've not been able to convince ki bhaiya vaccine lagwa do? Can we call them up and force them to do so, or kid them to do so, or play a prank on them? So radio is a very local, everyday, two-way speaking medium. So that is the most important thing. And can I just say thank you? I remember when I was first told about this, and Amrish sir was very kind to shift this to a Saturday. The only reason I really wanted to be here is because I love radio. I don't think there's anything more beautiful than radio. I think it's a power that no other medium has that radio has, because radio is the only medium, you know, where I'll give you a very basic example. अगर आप एक कैब में हो या एक गाड़ी में हो जहाँ पर एक ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे हो और आप पीछे बैठे हो, रेडियो इज द ओनली मीडियम जहाँ मुझे दोनों को एंगेज करना है एक ही टाइम पे, बिकॉज घर टीवी पे ऐसा नहीं होता, इंटरनेट पे ऐसा नहीं होता, कहीं और ऐसा नहीं होता, केवल रेडियो होता है जिसपे सब लोग एक साथ सुन रहे होते हैं. तो द पावर ऑफ bringing about any sort of change or just making people smile or making them laugh is ginormous, and that's why I love this medium. So for anybody who's recreating a medium, I will be there forever. Like, oh my god, I don't know anything else other than radio to do this. So I hope that the next time I can come across and I can see you guys do more communication. I hope that I can see you guys do more your stuff more than our stuff, because our stuff is done. So it's up to you what you want to think and what kind of, how you would translate that into it. And I hope the boys also, I see. I feel very like sad only seeing girls. I like the boys as well to come up and say things. So yeah, thank you very much for this opportunity. And I'm very glad that you guys are doing this. Sir, ma'am, thank you for keeping radio alive somewhere. That's all I'd like to say. Yes. Otherwise, I can go on talking for an hour. I will just shut up now. Yeah. Go. Thank you, ma'am, Yes, for your kind words. Thank you, Shika. Unfortunately, RJ Divya was unable to join because of an emergency. So now I would like to invite Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to please say a few words. Okay, Shika, thank you. And thank you, Ginny. Actually, जो प्रोग्राम आपका आता है ना, रेडियो लाइब्रेरी, बुक से रिलेटेड बहुत अच्छा होता है. मैं आई फॉन्ड ऑफ दैट. मुझे एक्चुअली मैं जैसा कि सक्सेना सर ने भी बोला कि मैं बचपन से रेडियो सुनती हूँ और मैं रेडियो में एज ए टॉकर, एज ए प्रोग्राम प्रोडक्शन मैं जाती थी 86 से. तो अब वो मेरा बहुत ही बड़ा शौक है और मॉर्निंग टू इवनिंग मेरा रेडियो चलता है. डिफरेंट चैनल चेंज करती हूँ, डिफरेंट प्रोग्राम सुनती हूँ और उसमें जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो मुझे सारे पसंद हैं. लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है रेडियो में वो इतना आपके नजदीक होता है, क्लोज होता है. जैसे आपने कहा कि एक ही समय में आपको कई तरह के लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज मास कम्युनिकेशन. हमें पता ही नहीं है हमें कौन सुन रहा है. और वो जैसे कैब में आपने बोला ड्राइवर भैया भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं कैब में बैठे. तो प्रोग्राम में लैंग्वेज और सारी चीजों पे सबको ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, लोगों को कितना पसंद आ रहा है, कितना इंटीमेसी लेवल फील कर रहे हैं लोग. सो दैट इज वेरी बिग चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम लोग तो एज ए प्रोग्राम टॉकर गए और प्रोग्राम प्रेजेंट किया 10 मिनट्स में और चले जाए. बट यू आर डूइंग रियली अ गुड जॉब, बिकॉज आपको पूरे टाइम उतने पीरियड जो आपका टाइम शेड्यूल है, टाइम स्पैन है, उतनी देर अपने सारे ऑडियंस को एंटरटेन भी करना है और उनके अकॉर्डिंग प्रोग्राम भी प्रेजेंट करना है और उतनी देर बोलना भी है, नॉन स्टॉप बोलना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड यस, एंड मूड आपका कुछ भी हो, कोई भी मूड हो, लेकिन आप जब रेडियो पे हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम आपको उस मूड में वापस आना पड़ता है जिस प्रोग्राम को आप प्रेजेंट कर रहे हो. सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि
ये जो अभी पिछला सिनेरियो था कोरोना वाला, उसमें हर किसी के साथ कुछ ना कुछ मुश्किलात आए हैं, लेकिन फिर भी जो आप प्रेजेंटर्स हो, आप जो एंकर्स हो, आपने आरजे, उन्होंने कितना बैलेंस किया, कितनी अच्छी तरह से सारी चीजों को संभाला। दैट वाज हेड्स ऑन यू। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा लगा। सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल प्रेजेंट हियर। और जो भी लोग सुन रहे हैं, उनको रेडियो को दिल से लेना चाहिए, दिल से उसको फील करना चाहिए, तभी हम रेडियो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आपने जो कहा कि ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल, क्योंकि ये बच्चे एक्चुअली इनके पास पेपर भी है, रेडियो प्रोडक्शन का भी होता है और आरजीएनआर का भी होता है, तो दोनों में ये अपना प्रोडक्शन करते हैं। बट क्योंकि इनका ये एक रेडियो इंटरसेक्ट का प्रोग्राम होता है, इनकी सोसाइटी है, तो इनको लगा कुछ क्रेजी बनाने के लिए कि हम रिक्रिएशन करें, दैट्स व्हाई। बट दैट वाज वेरी गुड टू सी यू। और टिनम ने तो आपको वहां मिल भी लिया। दैट वाज, वो शी बहुत एक्साइटेड थी कि मैं गिनी मैम से मिलूंगी, वहां पे वो आएंगे और हम प्रोग्राम करेंगे। सो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट खुलेगा तो हम आपको फिर से बुलाएंगे, ऑफलाइन मोड में हम सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। सो नाइस मीट ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am, for your inspiring words. I would like to invite Dr. Teenam Bora, Assistant Professor, DME Media School, to please say a few words. Thank you, Ashika. Well, good evening, everyone. First of all, I would like to congratulate the entire team of Radio Intersect for putting together this amazing program. And I have seen how hard you all have worked throughout the last 2 weeks to bring this together. And it's a matter of pride that you have been able to present it in front of, a senior RJ, an experienced RJ, and, you're getting to hear the instant feedback about your shows. So it's a really commendable job. And I have never seen them get so excited and passionately working for an event like this ever. And I'm really happy the way it turned out to be. And what like ma'am said, I and the faculty members who teach radio over here, our only intention here is to make students love radio even more. And Ginny ma'am, I would like to share this experience with you. Just a couple of days back, when I was taking a class and I was making them listen to your program, Ginny Ke Library, and I was playing this episode of where you are reviewing the book Rasidi Ticket. And after the program, I was asking them, what did you think of it? And I was taking comments from the students. And one student said, I just ordered it on Amazon. So that's how compelling your show is. And there are so many students who really love your show. And thank you so much for making your amazing show so that the people are really loving it. And like ma'am said, it's amazing how you connect with all the audiences and bring different perspectives and tell different stories. The way you build this connection, it's really amazing. And thank you so much for being with us here today. And I wish Divya ma'am could have also joined, but she could not. She just messaged that she was unable to join. She really wanted to, but she could not. Decide that she would have loved to be here. Yes. And the podcast that you did for her was fantastic, and she will say thank you. And for all the students who tuned in, I know Divya would say this: if you want to ask us anything, you go to RJ Divya at Instagram, at Facebook, and you can get your questions answered. And if you want to connect with me, it's RJ Ginnie, Ginnie. So that's what Divya would say, definitely. So this is from her. Yes, and I'll make sure that I send all the productions to her, and she'll listen, and I will. And I'll convey her feedback to all the students. So thank you. Over to you, Ishika. And just a minute, I must tell you, Ginny, this as well, though I was telling her already. There are few faculty members who were very excited. Not only Tina was excited,
others also who are excited and who wanted to listen to Ginny. And obviously, since it's in the online mode, so meeting is not possible. And many of the teachers are there in this program. Particularly, I would like to make a mention of Dr. Manasvi Maheshwari. So she said कि sir Ginny को ले आइए, हमने कहा ठीक है ले आते हैं. So Ishika, we can go ahead. Thank you, sir. Now, I would like to invite Anish Dhawan, third-year student of DME Media School, to deliver the vote of thanks. Thank you, Ishika. Hi, I, Anish Dhawan, third-year student of Delhi Metropolitan Education, Noida, would like to extend the vote of thanks on behalf of the entire organizing committee of the event. Firstly, I would like to express my gratitude towards everybody who made it here today. I'd like to thank our guest of honor, RJ Ginny and RJ Divya, who took out their time from their busy schedules and made this event possible. We are grateful to RJ Saima for sending us a beautiful video message to encourage our students. I'd like to put on record my gratitude towards Ambrish Saxena, Dean DME Media School, Dr. Sushmita Bala, HOD DME Media School, being a constant support throughout. I'd like to thank Teenam Bora, Assistant Professor DME Media School, for guiding us throughout the event and making everything available to us. Without her support and guidance, we wouldn't have pulled off this event. I'd like to put forth my joyous regard towards Yashika Agarwal, Aditi Katyal, Aditya Sajan, and Ananya Verma for giving such wonderful and power-packed performances. A special thanks to Shubham Mandal, former student convener, Radio Intersect and Illuminous DME Media School, for giving an outstanding performance. I express my sincere gratitude towards the designing team of Radio Intersect Society, that is Nikita Taneja, Ishika Vadhwa, Nandini Srivastav, Meghna Bakshi, and Kalidas Srinivas. And a special thanks to Mrinal Rawat, Ashish Rawat, and Himanshi Negi for helping us with the designing. To the students of Media School who made it all possible, Yashika Agrawal, the President, Muskan Baveja, Vice President, and Kshitij Sharma, Secretary of Radio Intersect. I express a warm regard for providing a helping hand in organizing the event. I'd also like to acknowledge the efforts of Kalidas Srinivas for devoting his time throughout the organizing process of the event. Big thanks to everyone involved in the technical department, Mr. Yogesh Sharma, Assistant Professor, DME Media School, and students of DME Media School, Rishabh Patel and Naitik Bhatt. Lastly, I'd like to extend thanks to all the faculty members who spread their valuable time from their schedules as per our convenience. Warm regards to everybody who was a part of this. None of this would have been possible without you. Thank you, everybody. ये कहानी है पपीता और कमल की। आप सुन रहे हैं किस्सों का काफिला, कहानियाँ आपकी जिंदगी के उतारों की। Obsession about Harry Potter books is so deeply rooted. मेरे नाल चल, मैं तेरे लिए तांगा बेच के सोने दे कंगन खरीद लवांगा। Poetry is an emotion, a feeling which flows straight from the heart to the butterflies in our belly.